आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने किया था टू प्रिपेयर M/20 solution of more salt, and with the help of that solution we have to find out the molarity and strength of the given potassium permanganate solution. Now today we have the aim to prepare M/50 solution of oxalic acid, and with the help of this solution find out the molarity and strength of the given potassium permanganate solution. तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये टाइट्रेशन जो है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन किस टाइप की है। तो इट इज अगेन रेडॉक्स टाइट्रेशन, इट इज ऑल्सो अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो पहली बात हो चुकी है हमारी कि रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो यहां पे एक कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कीप इन माइंड दैट KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 यहां क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर। देयर इज नो नीड टू ऐड एन इंडिकेटर। KMnO4 itself act as इंडिकेटर, क्योंकि KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का होता है और सोल्यूशन जो है पिंक हो जाता है, एंड वो हमारा एंड पॉइंट होता है कलरलेस टू पिंक। वो बाद में बात करते हैं, बट अब पहले समझ लो कि इट इज अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। दूसरा, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर। और दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑब्वियसली ऑक्सैलिक एसिड जो है इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सैलिक एसिड हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं वो कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है टू प्रिपेयर M/50 सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो क्रिस्टलाइन जो हम ऑक्सैलिक एसिड वेट करेंगे, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या है। तो जनरली बच्चों को ये तो पता ही होता है कि इट इज COOH, बट वो भूल जाते हैं कि इसके साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, तो यू शुड से लाइक दिस, इट इज COOH dot 2H2O. and what is its molecular mass? Molecular mass of oxalic acid, it is C, it is C2H2O4.2H2O. so 2 carbons, so 2 into 12, 2 hydrogens, 2 into 1 plus 4 oxygens, 4 into 16 plus 2 water, 2 into 18. So in total it is 24 plus 2 plus 64 plus 36. So it comes out to be 126. It is 126 gram per mole. So this is the molecular mass of crystalline oxalic acid. Because when we take oxalic acid to weigh, that is in crystalline form. So molecular mass of crystalline oxalic acid we have to take into account. Okay. अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो सबसे आप लिखोगे टू प्रिपेयर 1 M/50
solution of oxalic acid. So to prepare M/50 solution of oxalic acid, first of all molarity we have, just calculate the weight of it. Okay, what is the weight of oxalic acid required to prepare 250 ml of M/50 solution of oxalic acid. So to prepare 250 ml of M/50 solution of oxalic acid, you know what is the formula of molarity? It is weight of solute, molecular weight of solute into volume of solution in ml multiplied by 1000. So weight of oxalic acid required, that comes out to be molarity into molecular weight into volume in ml divided by 1000. So what is molarity? It is 1/50, molar mass 126, volume 250 and divided by 1000. So कितना आ गया ये? So it is 126 5 126 upon 200. So it comes out to be 0.63 gram. So 0.63 gram of oxalic acid we have to add in 250 ml of distilled water. So this is the weight of oxalic acid. Now in observation, so write weight of watt glass let us take it as x gram, whatever weight comes just put it here. Then weight of watch glass plus crystalline oxalic acid, let us say it is x plus 0.63 gram, and in this way we will conclude that weight of oxalic acid taken is equal to 0.63 gram, and this much amount of oxalic acid we dissolve 0.63 gram of oxalic acid is dissolved in 250 ml of solution or in 250 ml of distilled water to prepare M/50 solution of oxalic acid, right? So in this way जो 0.63 ग्राम है ऑक्सैलिक एसिड आपने वे किया, 250 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाला, एंड नाउ दिस M/50 solution of oxalic acid is ready. Now we titrate it against KMnO4. तो करना क्या आपको टाइट्रेशन में? सबसे पहले आपको ब्यूरेट में फिल कर देना है KMnO4, स्केल लगे होंगे उसमें उसको 0 तक फिल कर देना है। KMnO4 फिल कर दिया,
और दूसरा बीकर जिसमें आपने M/50 ऑक्सैलिक एसिड बनाया है, उसमें से पिपेट आउट करना है 10 ml ऑक्सैलिक एसिड और उसको ले लेना है कोनिकल फ्लास्क में। 10 ml हो गया ऑक्सैलिक एसिड और सेम एक टेस्ट ट्यूब जो है अप्रोक्सीमेटली 10 ml टेस्ट ट्यूब में H2SO4 ले लेना है। वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिया होगा टीचर ने आपको। 10 ml ये दोनों जो हैं इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सैलिक एसिड जो है किस तरह का एसिड है, तो याद रखना इट इज डाइबेसिक एसिड। तो याद रखना इसको आपको क्या करना है, ये जो दोनों लेके जब आपने ऑक्सैलिक एसिड और साथ में H2SO4 दोनों ऑलमोस्ट 10 ml, ये तो एग्जैक्टली 10 ml और इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 ml, एक टेस्ट ट्यूब डाल दी है आपने। इन दोनों को आपको बर्नर पे थोड़ी देर के लिए हीट करना है। ठीक है, क्यों हीट करना पड़ेगा? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए रिएक्शन स्लो होगा। टू फास्टन दिस रिएक्शन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इजिली, इसको वी हैव टू हीट फर्स्ट। हीट करने के बाद 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाना चाहिए। यू हैव टू हीट फॉर 2 to 3 मिनट्स। हीट करने के बाद आपने इसको रखा। अब आप इसको फिर वैसे ही करोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बना लोगे। सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। ऑक्सैलिक एसिड का तो फिक्स हो गया था 10 ml। तो उसके बाद फिर आपने फर्स्ट रीडिंग जो लेनी है ना, उसमें उसको अप्रोक्सीमेट मान के आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं या रख भी सकते हैं। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट रीडिंग में 1 ml एट ए टाइम आपको ऐड कर देना है। फिर आपकी रीडिंग जो है ऑलमोस्ट टीचर ने जो सेट करी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है जनरली 9 to 10 के बीच में आ जाती है रीडिंग। तो लेट अस से कि जो पहली रीडिंग जो है 1 ml एट ए टाइम डालने के बाद 9 ml तक सोल्यूशन कलरलेस हो रहा था, और 10 ml जैसे ही आपने डाला वो क्या हो जाएगा, परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा सोल्यूशन का। ठीक है, लाइट पिंक कलर आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो रीडिंग है वो 9 और 10 के बीच में आने वाली है। देन यू स्टार्ट विद 10, और फिर क्या होगा कि आप क्या करो 5, 6, 7, 8 ml तक तो रैंडम डालते रहो। 9th ml में 0.5 डालो, और 9th के बाद हर ड्रॉप के बाद जस्ट चेक कि लाइट पिंक कलर, परमानेंट लाइट पिंक कलर आया या नहीं आया। जैसे ही लाइट एक ड्रॉप डाली और लाइट पिंक परमानेंट हो गया, स्टॉप और नोट द रीडिंग। तो लेट अस से कि 9.8 आपकी रीडिंग आती है। तो 9.8 आ गई, 19.8 हो जाएगा 10 से।
और फिर अगर तो आपकी ब्यूरेट 50 ml की है देन इट्स ओके, कंटिन्यू रख सकते हो। बट अगर ये 25 ml की ब्यूरेट है जो जनरली आजकल होती है, तो आप वापस उसको फिल करो, 0 कर दो उसको, और नेक्स्ट रीडिंग भी अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो 9.8 ही आनी चाहिए। नहीं आती है तो कोई बात नहीं, एवरेजिंग कर देना, बट अगर आती है तो दैट मीन्स आपकी कॉन्कोर्डेंट रीडिंग आ गई है, एंड दैट इज सपोज टू बी करेक्ट। कॉन्कोर्डेंट रीडिंग बोलते हैं इसको। कॉन्कोर्डेंट रीडिंग जो है वो आपकी आ गई 9.8 ml। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो यूज हुआ दैट इज 9.8 ml। अब ये लाइट पिंक कलर का फंडा क्या है कि आपने लिया था KMnO4 जिसमें एक्टिव पार्ट है MnO4 नेगेटिव। अब MnO4 नेगेटिव जो है वो फॉर्म करता है Mn2+, ये आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, और add H2O to the side deficient of oxygen, double number of H+ ion to the opposite side, और कितना हो गया ये 7 पॉजिटिव और इधर 2 पॉजिटिव, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो ये KMnO4 की आयनिक इक्वेशन बैलेंस होगी इन एसिडिक मीडियम। और ऑक्सैलिक एसिड का जो है C2O4 2 नेगेटिव, दैट विल गिव 2 CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये आपका इक्वेशन आ गई। आयनिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो इसको मल्टीप्लाई करके करोगे 5 से, इसको 2 से ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16 H+ to give 2 Mn2 plus 10 CO2 and 8 H2। तो ये जो है आपकी आ गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें KMnO4 gains electron, so KMnO4 is an oxidizing agent, और oxalic acid loses electron, and that's why it is a reducing agent। तो ये होगी आपकी आयनिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो इक्वेशन होती है M1V1 इक्वल टू N1V1 इक्वल टू N2V2। इधर ले लो KMnO4 और इधर ले लो ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें कैसे करते हैं, आप N फैक्टर लेते हो KMnO4 का। N फैक्टर कितना होगा इसका 5, कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये, तो N ऐसे भी कर सकते हो। और ऑक्सैलिक एसिड का कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो एक आप ऐसे कर सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो, आप क्या करो M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 ओवर N2। सेम ही बात है, इसमें कैसे हुआ देखो, M1V1 अपॉन KMnO4 के कितने मोल्स हैं, तो 2, M2V2 ऑक्सैलिक एसिड के कितने मोल हैं, तो 5। तो ऐसा हो गया ना, 5 इंटू M1V1 2 इंटू M2V2, क्रिस क्रॉस करो, दोनों तरीके एक ही बात है। ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है, इसमें
ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन का एक पार्ट है, क्योंकि दो डिफरेंट रिएक्टेंट से जब हम डील करते हैं तो वी विल यूज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो ये आगे इक्वेशन। अब आपको पता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4। तो 5, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ KMnO4, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। व्हाट इज वॉल्यूम, वो हमने निकाला कि 9.8। आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है, 9.7 आ सकता है, 9.6 आ सकता है, 11.1 हो सकता है, 11.2, वट एवर इट इज, जस्ट पुट हेयर। तो 2m2 कितना हो गया, 1/50, और वॉल्यूम कितना है 10, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम कितना लिया था आपने, 10 ml। तो ये करने के बाद मोलैरिटी आपकी आ जाएगी इसको कैंसिल ही कर लो, कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 इंटू 1/5 इंटू 9.8 हो गया। 10 और 50 से 5 कर दिया मैंने, कितना हो गया ये 2/25 इंटू 9.8। बोल कैलकुलेशन करें अगर तो कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 25, 25 डिवाइडेड बाई 9.8, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.00816, 0.00816। तो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ KMnO4। ये आ गई। उसके बाद आपको दूसरा क्या पार्ट करना था, पहला था ए मोलैरिटी, तो ये हो गया मोलैरिटी ऑफ KMnO4। गिवन KMnO4 तो 0.00816 m or mole per liter you can write, and then second part is strength of KMnO4. तो strength is molarity into molecular mass. So molarity is 0.00816 multiplied by 158. That is the molecular mass of KMnO4. So it comes out to be into 158, so it is 1.828 29, 1. Take it as 1.29 ग्राम पर लीटर, और एंड में लिख दो रिजल्ट कि मोलैरिटी ऑफ KMnO4, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। और आपको बीच में जो है ना, स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज इंडिकेटर यूज्ड। तो आप लिख दोगे कि KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, ये बीच में लिखना पड़ेगा आपको आयनिक इक्वेशन के बाद, है ना। और क्या यूज करना पड़ेगा, व्हाट इज एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या है कि ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन पहले क्या था, कलरलेस, और फिर कैसा हो गया, लाइट पिंक, है ना, परमानेंट लाइट पिंक बोलो।
कई बार थोड़ी देर के लिए कलर आता है, आप शेक करते हो चला जाता है, परमानेंट लाइट पिंक कलर आ जाना चाहिए, दैट इज द एंड पॉइंट। सो दैट्स ऑल। तो इस तरह से यू कैन डू दिस particular exercise in the volumetric part of the class 12 practical exam. All the best.